Live. Hi, welcome to SoulFit. As we all know that we are facing the second wave of corona pandemic and fear, pain, remorse is what we find all around. News of people passing away, not getting beds, oxygen, lack of oxygen, injections, medicines is all that we hear. So to prevent all this, all we have to do is to stay at home, wear a mask, maintain social distancing, and most importantly, to get yourself vaccinated. Vaccination is a very simple way to protect people from any harmful disease. And with this ongoing second wave of the corona pandemic, the need to administer vaccination has become more and more important. So, in this effort to ramp up India's immunization campaign, the Government of India has announced that from 1st May, vaccination should be administered to all above 18 years. And to talk about vaccine and vaccination, we have amongst us Dr. Gaurav Luthra, the director of Drishti Eye Hospital and chief of cataract refractive surgery at Drishti Eye Hospital. And he belongs to one of the oldest and eminent families of Dehradun who have been helping people with all their dedication, love, and expertise. We are really honored to have him with us, and we owe him a lot of respect and gratitude. Dr. Luthra has been honored with many prestigious awards for his exemplary work in cataract and refractive surgery. And of lately, vaccination had been administered in Drishti Eye Clinic. So let us talk to Dr. Gaurav about vaccine and vaccination. Hello, sir. Welcome to Soulfit. Hi, how are you doing? Good evening, and I'm happy to be here. Thanks. Thank you, sir. Thank you for sparing your valuable time. I know all doctors are very busy nowadays and taking out time for us, sir. Thank you so much. And thanks for inviting me. And yes, doctors are busy. I think not so much with their own work as they would, but trying to just be available to help people as much as they can. So it's a pleasure to be here. And this is another way of trying to percolate information. तो जिनको जरूरत होगी उनके लिए बहुत अच्छा है कि that हम लोग उनको बता पाए आज. Yeah, thank you, sir. And sir, ऐसे आपके सामने है आजकल the whole, सारे हमारा तो शहर ही is full of corona and all the problems. सर सबसे पहले लोगों को प्लीज ये बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन बिकॉज 18 ईयर्स के अबव तो अब लगने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है बट दे आर पीपल जिन्होंने 45 अबव होके भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई सर मे बी दे हैव सम मिथ्स डाउट्स सर प्लीज इनको प्लीज टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन सर. Right. So I think first thing I would like to say is कि vaccination और vaccine जो word है ये नया तो है नहीं. हम लोग सब जानते हैं जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है तो मदर्स को पता चलता है कि उनको वैक्सीन लगवानी है बेबी को. एंड सो डिप्थीरिया, डीपीटी एंड पोलियो वी हैव बीन हियरिंग. इनफैक्ट जो सबसे सक्सेसफुल ड्राइव आज तक वर्ल्ड में रही है वैक्सीनेशन की दैट इज स्मॉल पॉक्स एंड देन आफ्टर दैट पोलियो. सो आई थिंक वी ऑल नो द सक्सेस स्टोरी. सो द सक्सेस स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी लॉन्ग. इट्स ओवर द लास्ट 50, 70, 80 years कि दैट पहले स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, उसके बाद देन और डिजीजेस इरेडिकेट हुई और ऐसे ही पोलियो के बारे में पूरी वर्ल्ड में रोटरी की तरफ से ड्राइव हुई एंड वी वर सक्सेसफुल. पोलियो इज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड एक्सेप्ट इन फ्यू पॉकेट्स. सो अदरवाइज कितने ही लाखों लोगों की पोलियो से जान भी जाती थी, लेग्स की डिफॉर्मिटीज हो जाती थी. और अब वो सब नहीं देखने को मिलता है. सो वी ऑल नाउ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन. स्पेशली हम लोगों को छोटी सी चोट लग जाती है तो हम कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगा लो ना. दैट इज ऑल्सो वैक्सीनेशन, राइट? सो वी ऑल नो दैट वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अस एंड दैट इज वाई वैक्सीनेशन से डरना नहीं चाहिए. ऑफकोर्स अब जब कोई नई बीमारी आती है तो उसमें सब लोग डरते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा. तो हमें क्या देखना होता है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब कितना वैक्सीनेशन. अब ऑब्वियसली जैसे अब कुछ बीमारियों की तो कभी बन ही नहीं पाई. फॉर एग्जांपल जैसे HIV था, उसमें अब हम लोग 15-20 साल से लगे हुए हैं लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिल पाए, राइट? बट लकीली इतनी शॉर्ट टर्म में वैक्सीन ढूंढना फॉर सम डिजीज लाइक कोविड पहले सोचा ही नहीं था कितने की मिल पाएगी, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको कर दिखाया. 4-5 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हो गई हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल एंड द रिस्क फ्रॉम वैक्सीन इज सो स्मॉल एंड द बेनिफिट दैट यू कैन गेट इज सो हाई दैट सोचने की भी जरूरत नहीं है कि हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए. सो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दैट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो वैक्सीनेशन के लिए बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है कि हमें जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीन, अनलेस कोई बहुत ही मतलब आपका डॉक्टर ही बोल दे कि आप बिल्कुल मत लगवाओ. So guys, please get yourself vaccinated. That is so important.
सर ये कई मिथ्स हैं सर वैक्सीन और स्पेशली कोविड की वैक्सीन को लेके पीपल हैव अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस, बहुत सारे मिथ्स हैं जैसे सर ये वैक्सीन इम्पैक्ट करती है इम्यूनिटी पे। सर प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस के डज इट रियली इम्पैक्ट? So it does not impact on the immunity at all. In fact, it boosts your immunity because आपको वो थोड़ा सा एक डोज ऑफ वायरस के कोई एक स्मॉल प्रोटीन पार्ट ही होता है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन होता है जिसको कि वैक्सीन में दिया जाता है और वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 डेज योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज विच विल प्रोटेक्ट अस। तो इसलिए इम्यूनिटी को तो एक तरीके से वैक्सीन बूस्ट ही कर रही है, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि इससे हमारे को कोई रिस्क हो जाएगा कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमारी इम्यूनिटी जरूर उल्टा स्ट्रांग होती है। बट हाँ, अगर किसी को बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी है ऑफ एनाफाइलैक्सिक रिएक्शंस या उनको कभी पहले रिएक्शन रह चुका है किसी चीज से, एलर्जिक रिएक्शन स्पेशली एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं जैसे, या किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि वो पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहें, या किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, उनको जरूर अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से पहले एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए बिफोर एक्चुअली गोइंग फॉर अ वैक्सीनेशन। एंड द लिमिटेशंस और या जिसको कि कहेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर गेटिंग अ वैक्सीन is almost 0.001%. So 18 plus age group is now permitted and authorized for vaccination and everybody is eligible over 18. अभी सिर्फ एक ही एरिया था जिसमें कि थोड़ा सा डाउट था, वो भी धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, इज अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स। उसके ऊपर ट्रायल्स नहीं हुए थे अभी तक। So I think that is one area and where we still have to think twice. But the consensus now is that lactating mothers can easily do it now. I spoke to quite a few gynecologists to find out about this. They are allowing the lactating mothers कि वो अगर vaccination कराना चाहें, और pregnancy में भी risk benefit ratio देख करके if the risk is more than the if the benefits are much more than the risk involved, so they are allowing vaccination even during pregnancy now in a limited way. Okay sir. सर एक बात बताइए, व्हाट जो हम वैक्सीन लगाते हैं सर, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीनेशन? हम जब करा लेते हैं वैक्सीनेशन तो क्या छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए आफ्टर दैट आल्सो सर? आई थिंक एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त हमारे को कोई एक्टिव डिजीज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे को फीवर है या कोई उस वक्त हमारे को कोई और ऑलरेडी रनिंग इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उस वक्त हमारे को वैक्सीनेशन कराना अवॉइड करना चाहिए। 2-4 दिन वेट करके तब हम ले सकते हैं। बट अदरवाइज जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को कैंसर सर्वाइवर हैं, उन सब के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है, दे कैन इजिली टेक द वैक्सीन। बट जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उस टाइम पे एक तो अवॉइड इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीन फॉर 2-3 डेज वन हैज टू बी केयरफुल। कोई अगर हमने सर्जरी प्लान की है या कोई और मेडिकल प्रोसीजर है तो 1-2 दिन डेफिनेटली बीच में गैप देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद साइट इंजेक्शन साइट पे जैसे पेन होता है थोड़ा 2 दिन, कुछ लोगों को माइल्ड फीवर आ सकता है, कुछ लोगों को थोड़े चिल्स हो सकते हैं, some people may experience mild allergy in the site of the injection also. So there are small little things, so but nothing disabling. ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि that आप अपना काम नहीं कर सकते, and you can take a tablet of paracetamol or crocin after the injection or after the vaccination, and half an hour you must stay. कई लोग सोचते हैं कि that हम लगवाएंगे और बस भाग जाएंगे कि हमें टाइम नहीं है बिल्कुल। So हम लोग उनको समझाते हैं कि नहीं, आपके फायदे में है। और कई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब घर ही में क्यों नहीं लग सकती है, तो उसमें रिस्क क्या होता है कि अगर हम हॉस्पिटल में लगाएंगे और गॉड फॉरबिड किसी को कोई रिएक्शन होता है, कुछ होता है, तो वहां पे हेल्प अवेलेबल होती है और आधे घंटे तक हमें वहां पे बैठ के पहले रिलैक्स करना चाहिए। एंड व्हेन वी फील कंफर्टेबल, सम पीपल फील लिटिल बिट लाइट हेडेड आफ्टर द शॉट एंड उनको लगता है कि दैट थोड़ी देर के लिए मतलब वी शुड सिट डाउन। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर गुड एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस आर वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक वी शुड फॉलो देम एंड ट्राई टू स्टे विद देम, अदरवाइज इट्स वेरी सेफ। सर एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था पीछे, आई थिंक वायरल भी हुआ था ये क्वेश्चन, कि वैक्सीन का पीरियड्स पे और फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। ये वाली जो कोविड की वैक्सीन से जो विमेन जो नॉर्मल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, या फर्टिलिटी पे भी बहुत इफेक्ट होता है सर। इज इट ट्रू सर? To any extent? Not at all. Not at all. In fact, again, this is a myth, and इस टाइप की बहुत सारी myths float कर रही थी, but ऐसा कोई भी proven ऐसा कुछ भी नहीं है। And now I feel that the numbers are so huge. In India itself, we have crossed 15 crore number of people who have got vaccinated. Worldwide, we have crossed a very very big number. USA, Israel is 100% vaccinated. USA has been at the forefront. UK is getting vaccinated very fast. वहाँ का rollout is very fast. US में I think 3 to 4 million people every day are getting vaccinated.
vaccinated. Yes, sir. We are vaccinating a huge number, 30 lakh people in India are getting vaccinated every day. So अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स दिख रहे होते या कुछ दिख रहा होता तो सामने आता. हमारे को करते हुए 3-4 महीने हो चुके हैं एंड ऐसा कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है जो कि हम किसी को बोलें कि आपको अननेसेसरीली डरने की जरूरत है. सो फर्टिलिटी के लिए डेफिनेटली कोई अभी ऐसा ऑब्वियस रिस्क नहीं है. अब देखिए लॉन्ग टर्म आज से 10-20 साल में क्या होगा, लेकिन इस वक्त तो हमें ये देखना है कि हम इस दौरान बच जाएं, कोविड से बच जाएं. उससे बड़ी क्या बात हो सकती है, वो तो आगे की चीजें तो छोटी मोटी हम बाद में डील कर सकते हैं. We never know. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. So there is no fear sir for that. सर अच्छा कई लोगों को सर वैक्सीनेशन लग गई, सपोज फर्स्ट डोज लग गई है एंड उसके बाद कोविड हो रहा है सर, बिकॉज इतना स्प्रेड हो चुका है ये, तो सर इसमें सर नेक्स्ट डोज कैसे लगवानी चाहिए, ये लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, सो हाउ टू गो अबाउट इट सर? राइट. एक तो काफी लोग, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, इनफैक्ट काफी लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन लगा हुआ था, फिर हमें कोविड क्यों हो गया. हाँ जी, so even that is also a similar question only. So first thing I would like to say is कि vaccination does not mean that आपको कोविड का इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता. मतलब 1 डोज भी प्रोटेक्ट करती है, 2 डोजेस और भी अच्छा प्रोटेक्ट करती है. So किसी की अगर सेकेंड डोज बची भी है और उनको अगर कोविड नहीं हुआ है तो उनको डेफिनेटली इमीडिएटली अपनी सेकेंड डोज लगवानी चाहिए अगर वो एलिजिबल है. मतलब अगर उनको महीना हो चुका है पहली डोज का तो वेट नहीं करना चाहिए, उनको इमीडिएटली अपनी सेकेंड डोज लेनी चाहिए. बिकॉज सेकेंड डोज हमारे को 70-80% प्रोटेक्शन दे देती है, सिंगल डोज सिर्फ 50% प्रोटेक्शन देती है. Yes. अच्छा, प्रोटेक्शन किस चीज से देती है? दोनों चीज से प्रोटेक्शन देती है. एक तो थोड़ा प्रोटेक्शन ये है कि कोविड का इन्फेक्शन होना ही मुश्किल हो जाएगा. सो इट इज लेस लाइकली दैट यू विल गेट इन्फेक्शन. बट सपोज आपको फिर भी डोज ऑफ वायरस बहुत ज्यादा मिलता है और इन्फेक्शन हो ही जाता है तो आपका प्रोटेक्शन from severe disease is very strong. Somebody who is vaccinated, there is very little chance कि वो person ICU में पहुंचेगा या वो उसको severe disease हो जाएगी या death हो सकती है, तो उसका risk is almost negligible or minimized. So big protection is अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, एक तो हम हो सकता है आईसीयू में ना पहुंचे और हमारी जान बच जाए और सीवियर डिजीज से बच जाए, और दूसरा हो सकता है कि हम ट्रांसमिशन में भी कम पार्टिसिपेट करें. तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि अगर हम सब वैक्सीनेटेड हैं तो हम शायद उसको, अगर हो भी गया तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा और हम शायद उसको उतना ज्यादा ट्रांसमिट भी अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं करेंगे. सो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इज की दैट अगर हमारी 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है तो ट्रांसमिशन भी बहुत धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि वो चेन ब्रेक हो जाएगी. एंड दैट इज द होल एम ऑफ वैक्सीनेशन. बट टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, दैट अगर हमारे को एक डोज लग चुकी है तो और फिर कोविड हो जाता है. सर एक क्वेश्चन भी आ रहा है, इफ आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड हैपेंस then when to take the next dose, so this will relate to बिल्कुल that's exactly what I was going to tell also कि that अगर कोविड हो जाता है तो फिर we have to wait. कोविड होने के बाद then we have to wait for at least 1 month to 6 weeks. That is the minimum time after which you can take the second dose. One should not take the dose immediately after you recover from the COVID infection. I think 1 month to 6 weeks is the minimum time. Some doctors have also said 12 weeks, but I think the consensus is कि 6 weeks के बाद हम अपनी second dose ले सकते हैं और safe हो सकते हैं. हाँ जी सर. और सर जैसे आफ्टर द डोज आल्सो सर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड इज इट देन आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड सर कितने दिन तक हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सर? ये भी सर पीपल शुड नो, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है 2 डोजेस लग गई तो पीपल थिंक कि अब हमें तो कुछ नहीं होगा, और सर कई लोग तो ऐसे जिनको कोविड हो गया है एंड दे आर जस्ट मूविंग अबाउट कि हमारे तो एंटीबॉडीज बनी हुई है, हमें कुछ नहीं होगा. Sir, so this clear this doubt also. Very good, very important both questions. I've seen, जो आप कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. इस तरह के लोग हमारे को भी बहुत मिलते हैं, हॉस्पिटल में भी आते हैं. तो पहले तो लेट अस टैकल की दैट अगर हमें कोविड ऑलरेडी हो चुका है तो क्या हमें दोबारा हो सकता है? तो डेफिनेटली बिल्कुल दोबारा हो सकता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस वेयर कोविड होने के बाद 3-4 महीने बाद हमारे को सम पीपल गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड अगेन बिकॉज दे स्टॉप टेकिंग प्रिकॉशन. उन्होंने सोचा हमारे पास तो एंटीबॉडीज हैं, बट जस्ट लाइक वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट यू कंप्लीटली बिकॉज द स्ट्रेन कीप्स चेंजिंग. सो कोविड हैज बीन इवॉल्विंग, उसमें म्यूटेशंस आते जा रहे हैं और स्ट्रेन बदलता जा रहा है. आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश स्ट्रेन एंड ब्राजीलियन स्ट्रेन एंड नाउ द इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन. तो स्ट्रेन जब चेंज हो जाता है तो वो इन्फेक्शन फिर से हो सकता है. तो हमें कॉम्प्लेसेंट होने का बिल्कुल इस वक्त कोई फायदा नहीं है, और पूरे प्रिकॉशंस इवन कोविड होने के बाद भी हमारे को वही लेने चाहिए जो हमें वैसे लेने चाहिए अगर हमें कोविड नहीं हुआ था, नंबर 1. और वैक्सीनेशन का एक और जो इफेक्ट देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि जिन्होंने आज वैक्सीनेशन कराना है वो उस दिन इवन बिफोर दे गेट द वैक्सीन दे स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क्स. even when they're heading to the hospital to get a vaccine, they stop wearing a mask कि अब तुम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं. तो पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद उसका जो पहली डोज का भी इफेक्ट है वो उसको आने में 15-20 दिन लगते हैं,
और सेकेंड डोज के 15-20 दिन बाद जाकर के हमारा मैक्सिमम प्रोटेक्शन आता है, विच मीन्स फर्स्ट डोज लगी, फिर हमने महीना 1.5 महीना वेट किया, फिर हमने सेकेंड डोज लगाई, उसके 15-20 दिन जाकर के जो मैक्सिमम इफेक्ट है. लेकिन इवन जब मैक्सिमम इफेक्ट है तब भी वी आर नॉट 100% प्रोटेक्टेड एंड द रिस्क स्टिल रिमेन्स. इट मे बी लिटिल लेस देन अदरवाइज बट द रिस्क रिमेन्स. सो वी हैव टू फॉलो ऑल द सेम प्रिकॉशंस. मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है और पूरा अपना वही प्रिकॉशन लेके चलना है जैसे कि हमें वैसे लेना है. इट इज जस्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी. दैट डजंट मीन कि दैट हम बिना हेलमेट के कार चलानी शुरू कर दें, बिल्कुल स्कूटर चलानी. इनफैक्ट क्योंकि एज यू सेड कि स्ट्रेन चेंज होके आ रहे हैं, यू नेवर नो अगर आपको हो गया है और फिर से, बिकॉज बेसिक इम्यूनिटी तो वीक होती ही है आपकी बॉडी की, सो यू हैव चांस ऑफ गेटिंग इट अगेन. एब्सोल्युटली सर, और कई लोगों ने पूछा कि अगर हमें फ्लू की वैक्सीन लगी हुई है तो हमें तब भी कोविड की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन. पीपल आर आस्किंग, यार मुझे तो फ्लू की लगी हुई है तो मैं क्यों लगवाऊं? Absolutely, yes. This is a very common question. So, flu vaccine is purely for flu, and COVID vaccine is something like a flu, but it has no cross protection. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने flu vaccine लगाई हुई है तो हमें COVID से protection हो जाएगा, या COVID की लगाई हुई है तो flu, because दोनों का सारा DNA और उनका जो वो genetic makeup है वो बिल्कुल different है. So, COVID vaccine इस वक्त लगाना ज़्यादा ज़रूरी है flu vaccine से, because flu is not yet, right now, is not one of the prominent problems, but विद टाइम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर आएगी तो उसके भी वो हर साल नया स्ट्रेन का वैक्सीन नया वो आता है, वो फिर भी हमें लगवाना ही पड़ेगा. बट बिटवीन एनी टू वैक्सीन वी शुड टेक अ गैप ऑफ अ मंथ एट लीस्ट. यस, तो प्लीज चाहे फ्लू की लगी है या नहीं लगी, आप वैक्सीन लगाइए. सर, ये क्वेश्चन आया है, इज वैक्सीनेशन इफेक्टिव ऑन ऑल स्ट्रेन ऑफ कोविड? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. So that's again a very good question. The problem is that now the strains are so many that it is very difficult to give a clear answer कि it is effective against all strains. But most of the vaccines are protecting against majority of the strains. So पहले जो हमारे यहाँ पे थोड़ा डाउट हो गया था कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो इंडिया में अवेलेबल है वो इस स्ट्रेन को नहीं प्रोटेक्ट करती है, उसको नहीं करती, तो वो डाउट भी बाद में क्लियर हो गया, बिकॉज यूएसए में डॉक्टर फाउची का भी स्टेटमेंट आया था कि इवन कोविशील्ड इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द ब्राजीलियन स्ट्रेन. एंड सो they are protecting us from majority of the strains. There will always be a few strains जो कि कोई भी vaccine 100% sure shot नहीं कर सकती. There is no vaccine in the world which will give 100% sure shot protection from every possible strain. चाहे वो Pfizer की हो, चाहे Moderna की हो, चाहे Sputnik हो, सब vaccines में कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू होने का चांस रहेगा ही रहेगा. सर, इसी के साथ ही लिंक क्वेश्चन है कि सपोज सर हमें एक वैक्सीन चाहे कोविशील्ड है या कोई भी लगी है, तो जो सर नेक्स्ट वैक्सीन लग रही है वो कोई और कंपनी की है या फाइजर की है या व्हाटएवर, सो इज इट फाइन, और क्या हमें सेम ही लगवानी पड़ेगी बाद में? So at present the guidelines are कि हमें सेम ही वैक्सीन लगवानी है, उसकी अगर 2 डोजेस की जरूरत है. ज्यादातर वैक्सीन में 2 डोज सेम वैक्सीन की लगती है, इंक्लूडिंग फाइजर, मॉडर्ना जो अमेरिका में है या अब्रॉड है, और जॉनसन एंड जॉनसन की सिर्फ 1 डोज लगती है. लेकिन इंडिया में जो अवेलेबल है अभी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों में 2 डोज लगती है और हमें सेम ही डोज लगवानी है. अभी फ्यूचर में लाइक सपोज हमें 1 साल के बाद या जब बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त तक हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी कि हम अपनी वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, और शायद उस टाइम तक थोड़ी और बेटर वैक्सीन आ जाएगी तो हम वो वैक्सीन लगवा सकते हैं. सो 8-9 महीने बाद या साल भर बाद जब हमारे को बूस्टर डोज का टाइम आएगा, देन वी कैन स्विच आवर वैक्सीन. ठीक है. और सर, ये अगर सपोज जैसे हमने अभी वैक्सीन लगवा ली एंड हमारी दोनों डोजेस पूरी हो गई, सर ये कितनी बार हमें रिपीट करना पड़ेगा? आफ्टर 6 मंथ्स या 1 साल बाद हमें फिर से करवानी पड़ेगी वैक्सीनेशन? Absolutely. So the expectation is कि at least 8 to 9 months, and it may be up to a year maximum. So उसके beyond definitely vaccine is not likely to give us lasting immunity. But since अभी worldwide ही roll out January में हुआ है, तो अभी हमें आपको पता ही नहीं है कि that हमारे vaccine के effects कब तक रहेंगे. तो expectation ये है कि end of this year तक हमारे पास better data आ जाएगा कि that whether we can when the vaccine booster doses will be required. The expectation is between 8-9 months to 1 year. तो हमें रिपीट करना ही पड़ेगा सर, एज और कोई वैक्सीनेशन होता है वो करना ही सर. तो अपने आप को ठीक रखना है, सेफ रखना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट सर. Yes. So vaccination should not be given to people with या patients with diabetes, HIV या kidney problem, cancer survival. Is it true, sir? No. In fact, all of these indications vaccine should be given, and there is no reason to protect. In fact, अभी तक तो सिर्फ डेटा जो ये था कि यंगस्टर्स, बच्चों में अभी अलाउड नहीं है, 16 to 18 ईयर्स से यंगर एज ग्रुप में, उसके अलावा सबके लिए अलाउड है. और ये सारी बीमारियां जितनी हैं, इन सब में एक्चुअली वैक्सीन देना इज इम्पॉर्टेंट. अगर थोड़ा भी डाउट है तो हमें अपने फैमिली फिजिशियन या किसी एमडी मेडिसिन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि भाई ये स्पेसिफिक चीज में क्या मुझे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या नहीं. 99.9% कोई भी बीमारी में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है.
हाँ जी सर. So we can get you can get yourself vaccinated in any of these conditions. Yes. सर अब जैसे सर नया हमारे को अब रूलिंग आ गया है कि हमें 1 मई से वैक्सीनेशन 18 इयर्स एंड अबव है सर, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन भी लग सकती है वैक्सीन? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट जो गाइडलाइंस आई हैं बहुत क्लियर हैं कि 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन होगी इट विल बी ओनली थ्रू रजिस्ट्रेशन नाउ, वो पोर्टल पे जाके कोविन के थ्रू. एंड पहले तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ था कि आप वॉक इन भी कर सकते हैं और रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल अलाउड नहीं है. नाउ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से एवरीबडी हैज टू बी रजिस्टर्ड. देयर विल बी नो वॉक इन वैक्सीनेशंस एट ऑल. सो कोविन ऐप पे जाकर के वन हैज टू रजिस्टर. मेनी ऑफ द स्टेट्स हैव सेड कि दैट हम 18 प्लस में फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, बट अभी उसकी भी गाइडलाइंस क्लियर कट नहीं आई है बिकॉज नाउ गवर्नमेंट हैज मेड अ फ्री मैकेनिज्म कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शायद फ्री लगेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शायद परचेज करके और वो जो भी प्राइस होगी उस पे लगानी पड़ेगी. सो वी आर गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन विद इन द नेक्स्ट 2-3 days. ठीक है सर. सो पर आज से सर वो खुल गए हैं मेरे ख्याल से पोर्टल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन. तो सर तो पीपल विल गेट. तो सर ये सभी काफी सेंटर्स बनेंगे इसके. आई थिंक योर हॉस्पिटल वाज आल्सो वन ऑफ द सेंटर्स. So I think government wants to increase because now the load will be very high because 18 plus population तो बहुत huge है, तो obviously उसको cater करने के लिए they have to increase the number of vaccination centers. So I'm sure कि government is going to enhance the number of centers. They'll ask more and more private hospitals to join the vaccination drive, and they may even throw it open to other areas. For example, there were talks कि कहीं schools में या election booths पे भी vaccination drive start कर सकते हैं या vans भी बन सकती हैं to outreach, कि go from place to place and do the vaccination. So there are a lot of talks, but if they really want to increase the numbers of vaccination, they will have to enhance the number of centers because otherwise वो पूरा load cover नहीं हो पाएगा आसानी से. And pace को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन की अगर हमें bigger numbers तक. काफी strain बढ़ता जा रहा है. It is really hovering too much. So there's a question. Yeah, sorry. हाँ जी तेरी से बताइए आप. Our center has been doing it for about 1.5-2 months. We've learned a lot. We are doing about 100 to 150 vaccinations per day, 4 times a week. So it has been a very fruitful exercise because we were able to help a lot of people. So if government rules permit us, we will continue it from the 1st of May also. Right. So there's a question coming up. After taking this vaccination, can we take any painkiller tablets or not? Is there any medicine which we can't take, or we should not take, or we can't take, sir? So ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन हम नहीं ले सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर वैक्सीन देते हैं तो उसके बाद एक पैरासिटामोल टैबलेट ले सकते हैं टू प्रिवेंट द स्पाइक ऑफ फीवर व्हिच सम पीपल माइट गेट, एंड सम पीपल डोंट टेक एनी टैबलेट एंड वो SOS ले सकते हैं. मतलब अगर तकलीफ होती है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. बाकी ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि कौन सी दवाई ले सकते हैं. सब कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो प्रिकॉशन नहीं है कि ये नहीं ले सकते या वो नहीं ले सकते. सर काफी सुनने में आया था कि आफ्टर द वैक्सीनेशन एक आधे दिन बाद कई लोगों को काफी बॉडी एक रहा है, बॉडी एक होता है, या कईयों को जैसे आप बता रहे हैं अभी बुखार आता है, कईयों को आईज पे भी सर इफेक्ट हुआ है, कईयों को हेजी आईज या ये सर ये भी हैं कुछ साइड इफेक्ट्स इन सब. तरह तरह की चीजें सुनने को जरूर मिलती रहती हैं और हमारे को भी पता चलता रहता है. किसी ने बताया बॉडी एक तो बहुत कॉमन एक साइड इफेक्ट था कि मेरे को बॉडी एक रहा एक दिन के लिए. हमारे स्टाफ में कई लोगों ने लगाया, काफी पेशेंट्स ने लगाया, और कई लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है. वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं चला कि दैट वैक्सीन लगाई थी, हम तो अगले दिन ही काम कर रहे थे या उसी दिन से ही काम करने लगे. सो अपना अपना एक्सपीरियंस है, बट जो भी होता है वो ट्रांजिएंट है. मतलब कोई ऐसा खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे को हम हफ्ते भर के लिए घर में बेड पे पड़ गए या कुछ हो गया. एट द मोस्ट क्या हो सकता है कि आपको एक दिन के लिए डिस्कम्फर्ट रहा, 2 दिन के लिए डिस्कम्फर्ट रहा, देन यू आर बैक टू योर यूजुअल वर्क. सो कोई ऐसा कोविड होना इज मच मोर डेंजरस than the small little problems which you can have from vaccine. So I think, in that sense, COVID itself is such a big dangerous disease that हमें vaccination की छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. बिल्कुल सर. So there's a question coming. What is the possibility of getting positive COVID report after getting vaccination? Because we've heard people saying that reports will be positive as the body now has weak virus after vaccination. Is it true? नो नॉट एट ऑल ट्रू, बिकॉज जो वैक्सीन होती हैं उसमें पूरा वायरस नहीं होता है. उसमें मतलब वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन ही होता है सिर्फ, जिसकी वजह से हमारे को एंटीबॉडीज मिलती हैं. तो स्पाइक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से तो वो हमारी बॉडी में कोई प्रॉपर वायरस रेप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है. इसीलिए दैट पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर कि हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा. ये बिल्कुल गलत है. ऐसा बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है कि हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आएगा. बट हाँ, हम लोग अगर कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे आफ्टर 15-20 days तो वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस पर्पस ही यही था वैक्सीन लगाने का कि हमारी
एंटीबॉडीज बन जाए, तो एंटीजन टेस्ट तो पॉजिटिव नहीं आएगा, बट एंटीबॉडी टेस्ट जो कि आना ही चाहिए पॉजिटिव, तभी फायदा हो रहा है वैक्सीन लगाने का, तो वो जरूर 15-20 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है, और उसमें अच्छा ही है हमारे लिए। सर आजकल एक और बड़ी नया ये जिस स्ट्रेन में, मैं आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर भी है, बट सर जब हम टेस्ट कराते हैं, जैसे सपोज सर किसी को बुखार आया या गला खराब हुआ, आजकल आई थिंक दिस कोविड जब किसी को हो रहा होता है तो इससे स्टमक से स्टार्ट हो रहा है, अभी किसी का स्टमक खराब हो रहा है, किसी का गला खराब हो रहा है, तो सर सेकेंड डे टेस्ट कराने पे नेगेटिव आती है नॉर्मली रिपोर्ट, एंड फिर वो 3-4 दिन बाद इट टेक्स इट फॉर्म, और फिर सर अगर कराओ या MRI कराओ, सीटी स्कैन कराओ तो आता है सर। सो इसका क्या असर रहता है कि हाउ, मतलब कितनी देर हमें वेट करनी चाहिए, और कैसे हाउ टू गो अबाउट सपोज वी स्टार्ट अप विद एनी स्मॉल सिम्टम आल्सो सर? ओके, सो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है सपोज घर में कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव हो गया, तो बाकी लोग डरते हैं कि हम अपना टेस्ट करा लें, तो एक तो पहली बात, उनको अपना टेस्ट इमीडिएटली नहीं कराना चाहिए। अगर हमारे को एक्सपोजर हुआ है किसी से जो कि हमें पता है कि पर्सन पॉजिटिव था, उससे हमारी बातचीत हुई या हम मिले और बाद में पता चला कि वो पर्सन तो पॉजिटिव था, तो हमें एटलीस्ट 3 to 4 डेज वेट करके ही अपना टेस्ट कराना चाहिए, अगर हम प्रिकॉशनरी तौर पे कराना चाहते हैं। बट अगर हमें सिम्टम्स हो रहे हैं खुद को, तो फिर हमें टेस्ट कराने में डिले करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जैसे अगर हमारा गला ऑलरेडी खराब है या रनी नोज है। आजकल मोस्ट कॉमनली क्या हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद अ स्मॉल रनी नोज, एंड उसके साथ में कुछ लोगों को सोर थ्रोट होता है, फिर कुछ लोगों को फीवर आता है। तो अगर फीवर आ रहा है और सोर थ्रोट है और माइल्ड सी कॉफ शुरू हो चुकी है, तो फिर वेट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन गेट द PCR टेस्ट डन इमीडिएटली, एंड चांसेस आर इट विल कम पॉजिटिव। सो रैपिड एंटीजन इज ऑल्सो अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट, बट उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मतलब उसमें 2 चीजें होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है और एक सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि क्या वो हर 100 जितने लोगों को इन्फेक्शन है सबको पकड़ लेगा, तो नहीं, वो पकड़ नहीं पाएगा। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट 50% लोगों में ही पॉजिटिव निकलता है, बाकी 50% केसेस में मिस कर जाता है। लेकिन जिनमें पॉजिटिव निकलता है उनमें श्योर शॉट पॉजिटिव है, मतलब अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो फिर हमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन कोविड पॉजिटिव है। तो अगर किसी का पॉजिटिव निकलता है रैपिड एंटीजन, तो हम श्योर हैं कि वो पॉजिटिव है और उसको आगे और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव निकलता है तो उसको जरूर अपना PCR कराना चाहिए। तो अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव है तो PCR कराना जरूरी है, क्योंकि मिस हो सकता है, नहीं तो इवन PCR में से भी 10-20% केसेस मिस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दैट वही हर हमेशा पॉजिटिव निकले, तो कुछ पॉजिटिव केसेस में PCR भी मिस कर सकता है। तो फिर CT स्कैन की वैल्यू आ जाती है। सपोज हमें फीवर चल रहा है, खांसी भी है, लग रहा है कि कोविड है, लेकिन रैपिड एंटीजन भी नेगेटिव था, PCR भी नेगेटिव था, लेकिन डॉक्टर को तो डाउट है, तो फिर डॉक्टर CT स्कैन कराते हैं। और CT स्कैन अगर 4th-5th डे पे करते हैं या 7th डे पे करते हैं, तो उसमें CT स्कैन में चेस्ट में चेंजेस मिल जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव वे कि अगर वैसे नहीं हम प्रूव कर पा रहे हैं कोविड है, तो CT स्कैन में प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि 2-3 दिन वेट भी करते रहिए और सी द सिम्टम्स, इफ दे आर इंक्रीजिंग तो आप अपना एज पर दी कंडीशन आप अपना करा लीजिए, बट कराना जरूरी है टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि सर मेरे ख्याल से अगर लंग्स को इफेक्ट करता है तो इट टेक्स अ वेरी बैड शेप, और आजकल थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना चाहिए इस बात का। दो रीजन से इंपॉर्टेंट है टेस्ट कराना और जानना कि दैट हम पॉजिटिव हैं या नहीं। एक तो ये कि हम ऑटोमेटिकली ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं, नहीं तो हमें लगता रहता है कि नहीं शायद कोविड नहीं होगा, तो हम पूरा प्रिकॉशन नहीं लेते, दूसरों से हटके नहीं रहते, दूसरे लोग भी आपसे प्रिकॉशन नहीं लेते, एंड इन दैट प्रोसेस यू कैन कीप गोइंग टू वर्क एंड यू मे स्टार्ट स्प्रेडिंग इट। सो पता चल जाता है कि पॉजिटिव है तो आप केयरफुल हो जाते हो। दूसरा, आप एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप पॉजिटिव हो, तो आप ट्रीटमेंट को भी सीरियसली नहीं लेंगे, और तभी गड़बड़ होती है। अगर हम ट्रीटमेंट को सीरियसली लें तो ऑलमोस्ट मोर्टेलिटी नेग्लिजिबल हो जाए, लेकिन क्योंकि पीपल कीप ट्राइंग टू टेक फनी ट्रीटमेंट्स एट होम एंड वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उस वजह से वो बढ़ती जाती है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब इट्स टू लेट, देन यू कांट ट्रीट। सो आई थिंक नोइंग वेदर यू हैव एन इन्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट शुड बी डन। सर आजकल एक बड़ा वो चल रहा था, आपने भी देखा होगा सर सोशल मीडिया पे, वो एक कपड़े के अंदर लौंग और कैम्फर और वो सब डाल के उसकी पोटली बना दी कि इसको आप स्मेल करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, तो यू विल गेट दैट ऑक्सीजन का आपका सप्लाई काफी हो जाएगा। सर काफी वायरल रहा है ये भी, बट आई डोंट, सर व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस सर, बिकॉज तो ये सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती, इनमें से कोई नुकसानदायक तो है ही नहीं, तो ट्राई करने में मेरे को लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग एंड यूजिंग दोज थिंग्स व्हिच आर टेस्टेड एंड प्रूवन। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अगर किसी को ऑक्सीजन सच में ही बढ़ानी है तो उसके लिए प्राणायाम करना बहुत यूजफुल है।
तो अगर हम अनुलोम विलोम करें या हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वो बहुत यूजफुल है। एकदम ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाती है, जिसकी अगर 93 94 होगी वो एकदम 97 हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी को कोविड है घर में और उसको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन फॉल कर रही है, तो प्रोन पोजिशनिंग करनी होती है। बेड में हम उल्टा लेट सकते हैं, पेट के नीचे पिलो ना रखें, सिर के नीचे रखें, घुटनों के नीचे रखें और उल्टा लेट के डीप ब्रीदिंग करें। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी 4 या 5 इमीडिएटली बढ़ सकती है, तो उससे लोगों की जान भी बच सकती है। अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिल रही है तो प्रोन पोजिशनिंग करके ब्रीथ करने से। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे छोटे नुस्खे ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज आपको हेल्प कर जाए, है ना। और इट्स फाइन। सर एक और बात बताइए सर, हमें सबको मालूम है कि ये जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है 97, 98, 96 है सर, कहाँ तक हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कितने तक ऑक्सीजन रहे कि वी डू नॉट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल सर? दैट इज पीपल शुड नो, बिकॉज थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाती है आजकल ना, पीपल आर गेटिंग पैनिक्ड। सो सर So I think first most important thing is कि पल्स ऑक्सीमीटर सबके घर में एक होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सो अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो फिर हमें क्या करना है कि अगर हमें पता चलता है कि कोविड हुआ है तो हमारे को डेफिनेटली अपना पल्स ऑक्सीमीटर तब तक वेट नहीं करना चाहिए कि जब सांस फूलनी शुरू होगी तब हम नापना शुरू करेंगे। हमें पहले दिन से ही नापना चाहिए एंड वी कैन कीप अ रिकॉर्ड, उसकी फोटो खींच के रख लें। आमतौर पे एक नॉर्मल पर्सन का ऑक्सीजन सैचुरेशन 96, 97, 98 के आसपास रहता है। और अगर वो सपोज हमने रिकॉर्ड किया और हमारा 97, 98 रहता है नॉर्मली, लेकिन इन्फेक्शन होने के तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन अगर हमें दिख रहा है कि 95 हो गया, 94 हो गया, फॉल कर रहा है, चेस्ट में टाइटनेस है या सांस लेने में दिक्कत लग रही है, थोड़ी फीवर नहीं उतर रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो अगर फॉल इन सैचुरेशन दिख रहा है तो ऑब्वियसली दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग, तो दैट मीन्स वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। तो अगर हमारा सैचुरेशन 92, 93 के आसपास आ गया है तो डेफिनेटली एक्शन लेने का टाइम है और वी शुड ट्राई टू रीच अ हॉस्पिटल एंड गेट एडमिटेड और एटलीस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। देखिए आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि काफी लोगों को तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहा है, जगह ही नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, तो हमें फिर वी हैव टू देन कीप फॉलोइंग ट्रीटमेंट एट होम टिल वी आर एबल टू गेट अ बेड। तो ऐसे में फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रॉपर मेडिसिन एंड इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। ऑलमोस्ट सारे फिजिशियंस जो है टेली कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप जिसको भी जानते हैं, आप जब अगर इन्फेक्शन होता है तो पहले दिन से उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और उनकी गाइडेंस में रहें कि डॉक्टर साहब हम सुबह शाम आपसे बात करके पूछते रहेंगे कि हमें आगे ट्रीटमेंट कैसे लेना है और उस ट्रीटमेंट को मेथोडिकली फॉलो करें, टाइमली एंड जो भी मेडिसिन है उनको टाइमली लें और अगर गड़बड़ होती है तो हॉस्पिटल पहुंचे। सर ये भी प्लीज लोगों को प्लीज ये अवेयर कर दीजिए कि जितने भी मेडिसिन हैं या सर जो इंजेक्शन हैं वो अपने आप ना लें, बिकॉज सर पीपल हैव स्टार्टेड होर्डिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीनेशंस आल्सो, वैक्सीन्स आल्सो, इंजेक्शंस होर्डिंग शुरू हो गए कि जरूरत पड़ेगी तो हम खुद लगा लेंगे। सर प्लीज इसके बारे में भी अवेयर कर दीजिए लोगों को। सो आई थिंक उसका बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं है। वैक्सीन तो चलो खैर हो ही नहीं सकती, वो तो गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू ही आती है, बट मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर और लोगों ने, और इनफैक्ट दिल्ली में तो पैरासीटामोल की शॉर्टेज हो गई, ब्यूटिकॉट इनहेलर की शॉर्टेज हो गई, यहाँ तक कि इवन पैन 40 की, मतलब जो एसिडिटी की हैं जो सारी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, लोगों ने सारी खरीद के अपने घरों में भर ली हैं। तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, प्रेडनिसोलोन और मेड्रोल, उनकी भी शॉर्टेज हो गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो आई थिंक होर्डिंग करने का बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। अगर हम अपने तरीके से अपनी नीड वाली दवाई सिर्फ खरीदें तो वही हमारे लिए सफिशिएंट है। और इंजेक्शन तो ऑब्वियसली घर में लग ही नहीं सकते हैं, तो इंजेक्शन तो हमें वैसे ही हॉस्पिटल में ही लग सकता है क्योंकि दे आर वेरी रिस्की, और अगर हम घर पे लगाने की कोशिश करेंगे तो हम उल्टा अपना नुकसान ही कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। और अगर ऐसी नौबत आती है कि दैट हम उस स्टेज पे पहुंचे तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू रीच अ हॉस्पिटल एंड ट्राई टू गेट अ बेड इन द हॉस्पिटल। डून हॉस्पिटल में बहुत अच्छे बेड स्ट्रेंथ है, हिमालयन में, इंद्रेश में, अब तो काफी एनहांस हो गई है बेड स्ट्रेंथ, कोरोनेशन में भी खुल गया है, बाकी मैक्स में, सिनर्जी में, सब में बहुत सारे प्रोविजंस है। सो आई थिंक वी हैव टू reach the hospital when we need to reach. Yes. So there is a question coming that I am asthmatic and having wheezing on and off since March. I normally get wheezing during this period period every year. I'm 51 years old. Should I take the vaccine or postpone it till I'm perfectly fine? So I think I would not think that there is any problem in taking the vaccine as long as the wheezing is taken care of and it is not actively troubling you, or if you are not having any actual active disease. For example, if you are having currently an asthmatic attack, then obviously you would avoid it.
but if there is a mild wheeze which is seasonal, as this person is telling us that इस मौसम में होता ही है, तो उसको treat करके और फिर vaccine ले लेना चाहिए. There is absolutely no problem. But if there is a doubt, then best thing is to ask your physician और pulmonologist कि that जो आपको treat कर रहा है asthma के लिए या wheezing के लिए कि भाई हम इसको ले लें कि ना ले लें, कोई reason होगा तो वो बताएंगे जरूर. So I think asthmatic patients को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए because of this, because वो lungs उसमें ज़्यादा effect होता है. Absolutely. They are more likely to be allergic also. So there's another question: which vaccine is more effective, Covishield or Covaxin? So both have been shown to be very very effective. Their efficacy is almost identical and similar. So ये बीच बीच में ना ideas आते रहते हैं, कभी उसके phase 3 trials आ जाते हैं, कभी उसके तो लगता है कि वो better है या ये better है, but both are almost equally very efficacious. So there is nothing to choose between the two. And वैसे भी गवर्नमेंट ने अभी तक तो हर स्टेट को एक ही वैक्सीन दी है. जैसे उत्तराखंड को सिर्फ कोविशील्ड दी गई एंड कुछ स्टेट्स को सिर्फ कोवैक्सीन मिली. दिल्ली में शायद कुछ एरियाज में कोवैक्सीन और कुछ में कोविशील्ड. सो जो भी अवेलेबल है हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब वो आएगी तब बोलेंगे. इस वक्त जो मिल रही है उसको लेके खत्म करें, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे. हाँ, तो जिसको कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स सर. इस वक्त तो हमें बस आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो. बस वैक्सीन इज बेटर देन नो वैक्सीन. Yes, sir. बिल्कुल. Sir, is there if there is common cold or cough, can the vaccine be taken? So अगर acute infection हुआ है, 2-4 दिन खांसी है, तो 2-4 दिन वेट करने में कोई बुराई नहीं है. 2-4 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा. हम अगर वायरल फीवर है या कोल्ड है उस वक्त वेट कर सकते हैं 2-4 दिन, और जैसे ही ठीक हो जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद ले लेंगे. So there was another question, बड़ा interesting है कि are Indian vaccines not as effective as compared to जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में मिल रही है सर? ऐसा नहीं है, बिकॉज अब जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज की सारी वैक्सीन बड़ी इफेक्टिव हैं, क्योंकि अब जैसे चाइना में वैक्सीन थी उसकी एफिकेसी के ऊपर बहुत डाउट्स आ गए, है ना. और ऐसे ही अब कुछ वैक्सीन जैसे यूएसए वाली हैं उसमें कहने को 90% सक्सेस रेट्स हैं. बट ऐसा है, देखिए ये सब डेटा जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा डिफरेंट स्टडीज देती रहती हैं, तो इसको मानना बहुत मुश्किल है. इसको तो जानने के लिए हमें 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, और अगर हम 2-3 साल वेट करेंगे देखने के लिए कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, तो इस दौरान तो कोविड हो ही जाएगा हमारे को. तो आई थिंक हाँ, तो चाहे वो 70% इफेक्टिव हो, चाहे वो 80 हो, चाहे 90 हो, हमें इस वक्त तो वैक्सीन जो भी अवेलेबल इजीली है वो ले लेनी चाहिए. जब बूस्टर डोज का टाइम आएगा वी कैन चूज, तब तक पता चल जाएगा कौन सी ज्यादा इफेक्टिव लग रही है, डेटा आ जाएगा, उस टाइम पे वी कैन टेक अ बेटर वैक्सीन अगर जो उस हिसाब से चाहिए होगी. So there's another question कि do we get to choose the vaccination center or will that be defined by the registration process? What's the vaccination time at the center? So we can choose our vaccination center. जब हम register करते हैं, there are 2 steps in the registration. First, you have to register yourself with your Aadhaar card and get registered for vaccination. Then it allows you to either remain open कि आप कहीं पे भी walk-in कर जाओ, या it allows you to choose a center. So now I think walk-in will not be permitted from 1st May, and you will have to choose a center and you have a choice. Only thing is that हर center के slots होते हैं. अगर slots full हैं तो obviously वो center आपको नहीं मिलेगा उस particular day पे, but अगर slots open है तो वो मिल जाएगा. And then you can choose your nearby center, whatever is convenient, and go there. And usually the timings are from the morning like 9:30, 10 o'clock till evening 5. And some centers are doing 7 days a week, some centers are doing 4 days a week, some are doing 6 days a week. So you have to see, those slots will be visible to you when you try to choose a slot. Yes. And so is there only one dose of the vaccination required कि जो 2 doses fixed हैं? It was a question सर कि दोनों डोजेस ही रिक्वायर्ड होगी. कई लोग थोड़ा इजी हो जाते हैं कि एक लगवा ली और उसके बाद चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं बाद में. आई थिंक 1 डोज से तो सिर्फ 50% ही प्रोटेक्शन मिलता है, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है. मतलब 2 डोजेस तो बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर 70 to 80% प्रोटेक्शन चाहिए तो हमारे को 2 डोज लगानी जरूरी है. बट येस, इवन अगर 1 डोज भी लगी है तो हमारे को उससे भी थोड़ा प्रोटेक्शन फ्रॉम सिवियर डिजीज मिलता है. तो सपोज 1 डोज लगने के बाद किसी को कोविड हो जाता है, तो दैट पर्सन इज मच बेटर ऑफ देन समबडी हु हैज नो डोज एट ऑल. सो 1 डोज इज गुड, 2 डोजेस इज बेस्ट. Yes, sir. There's another question. It's being said that if a person is recovered from COVID, he cannot take vaccine till 3 to 4 months. True or not? No, I think we already addressed this, that after 6 weeks, we can take the second dose of the vaccine again if we are absolutely fine. Yeah. Sir, Yara, I'm a diabetic and my sugar is not in control. So should I take the vaccine?
This is a difficult question. First of all, sugar should not be left out of control anyway, and you should try to control. And controlling the sugar is not a very difficult thing. Once you get down to it, there is nobody whose sugar cannot be controlled within a few days. So I think first you should see your physician, get your sugars controlled nicely within 3-4 days or a week, and then take the shot. But again, even if it is not well controlled, you can still take the shot. ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते. So we should not look for excuses कि हमें वैक्सीन नहीं लगानी है. So एक आ रहा था क्वेश्चन कि autoimmune disease है इनको. He has some autoimmune disease. So is it safe for him to get his vaccine? So autoimmune diseases में it is again now thought that it is safe, but anybody who has an autoimmune disease should consult his rheumatologist and ask that whether I should go ahead or not, just to be on the safe side. But there is otherwise from the government side there is no contraindication to stop you from taking it. So I think हमने काफी we've covered all the questions what were coming in from people also and from our end also, sir. I think we've really covered. And anything else anybody wants to ask, you can just contact sir Gaurav Luthra sir. He is available, and आप phone पे या हमारे यहाँ पे message कर दीजिए. We will connect you directly to him. So, and sir, thank you so much, sir, for sparing your time, giving such valuable information, sir. And I think बहुत सारे लोग benefit होंगे इससे. And कई doubts, कई myths आज आपने clear किए, sir. Any piece of advice, sir, जो आप last में सबको देना चाहते हैं, sir? Because of this time. So I think you've done a great job. You're really doing great job for society by doing these small sessions, which are so educative for people. And I'm sure people are loving all the small little questions that you are able to put across and get answers from specialists. So please continue to do the good work. And also, I feel that my message to everyone would be at this time, because we are passing through one of the toughest phases of the pandemic, is to follow all the precautions. See, right now, the infection has reached almost every house. So first thing is that please stay protected. Please keep your elderly protected. Even at home now, recommendation is to wear a mask when you're meeting your elderly people, or if you're, if there are more than 2-3 people in a room, please wear a mask even inside the house now. That's the new recommendation. Also, cut down the amount of contact with outside people as much as you can. Unnecessary risks not to be taken. And if you're still not vaccinated, please do it immediately before it's too late. Even if you have taken one shot of vaccine and suppose after a week you get infected, you are still better protected than without it. It's like a seatbelt or an airbag. Driving without a seatbelt or airbag is likely to give you more injuries. So consider vaccination like your seatbelt and airbag, and don't drive without it. Yes. Thank you, sir. Thank you so much for your time and valuable piece of advice. And thank you for coming, sir. Thank you. Thanks, Vaji, and it's been a pleasure to be here. Thank you, and good wishes, everybody. Stay safe. Yeah, everybody, please stay safe. Please अपने घर में रहिए, safe रहिए, और ताकि हम औरों को भी spread ना करें. बस everybody stay safe. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you.